Hello dear students, and this is your social science class, and today we are going to start a new chapter from geography, and the chapter's name is water. Chapter number 5, water. Whenever we talk of water, what comes to your mind? What is the first thing that comes to your mind? It reminds us of rain, it reminds us of rivers, lakes, seas, oceans, your water bottle that you bring in your school. So water is just a very essential part of our life. We need water for our survival. Without water we can't survive, and you must be knowing, and you all know that water is the thing that separates our planet Earth from other planets, because in our planet we have water and we have oxygen, and that is why life exists only on our planet, that is Earth. So today we are going to discuss about the importance of water, how much water is present on our earth, that means the water that we can use, what is the distribution of water, and we will study about many types of ocean movements of water that we see on earth. Okay? Ocean circulation that we call. So first we are talking about water cycle. You must be knowing that water जो है वो because of the presence of sun, because of the heat of the sun, the water in the water bodies present on earth, it gets evaporated, right? वो उसका evaporation हो जाता है. After evaporation it goes in the atmosphere, and there it forms clouds. It turns into clouds, and clouds, they store water vapor in the form of they store all the water vapor, and this is the formation of clouds. When these clouds get saturated with water vapor, then what happens? The water vapor condenses. When the saturation reaches, the water क्या होता है, वो condense हो जाता है and takes the form of water droplets, and then it falls on earth in the form of precipitation, right? Precipitation is the term that we use for rain. Rain ko in more scientific terms it is called as precipitation. So whenever you hear the term precipitation, you have to understand that we are talking about rain. So this is how the water is being circulated from the land to the atmosphere and then again on the land, है ना? ये circulation take place हो रहा है like वाटर जो अर्थ पर था उसका इवोपरेशन हुआ, वो वाटर वेपर बना, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में उसने क्लाउड फॉर्मेशन किया, क्लाउड्स जो हैं वो कंडेंस हुए, एंड देन इट रेन्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो और हेल, वो किसी भी फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है, वाटर साइकिल क्या है? एंड दैट इज वाई वी कैन से that the water which is present on earth, which was present on earth millions of years ago, is still here. क्योंकि water क्या होता है, वो water circulate होके यहीं आ जाता है. ये हो सकता है कि जो इंडिया का वाटर था वो it has reached USA, and USA's water must have reached somewhere else water must have come to India. क्योंकि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर चले जाते हैं तो क्लाउड्स एक जगह खड़े नहीं हो जाते कि यहाँ से इवोपरेशन हुआ और यहीं पर वाटर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया. इट कीप्स ऑन मूविंग. सो वाटर इट ऑल्सो, जो एक्चुअल में क्या है, वाटर वेपर क्या है, जो वाटर था वही गैस के फॉर्म में मूव कर रहा है. सो वाटर कीप्स ऑन मूविंग ऑन अर्थ, बट इट is there since millions of years ago. Since millions of years it is circulating between land and atmosphere. आ रहा है समझ में? So what is the definition of water cycle? The process by which water continually changes its form, right? It changes its form from water to gas, and then from gas to again water, and circulates between oceans, atmosphere and land. Ocean से atmosphere, ocean से water vapor का formation हुआ, फिर वो atmosphere में गया और ultimately कहाँ पर return हुआ? On land. So this is how the water circulates on earth, and this process is known as water cycle. This you can easily represent through a diagram also. Diagram आपकी बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छा सा, और आप उसको अपनी imagination से बना सकते हैं. You can show the evaporation of water because of the heat of the sun, and then you can show the formation of cloud, and then you can show the condensation of water vapor, right?
Now the distribution of water bodies, how this water which is present on earth, we know that our earth is a blue planet, हमारी earth जो है वो एक blue planet है, उसमें 75% is water. तो ये जो water है वो कैसे distributed है पूरे land में, कैसे कैसे water के sources हमारे पास हैं, ठीक है. This is in percentage. I have not formed the symbol of percentage, but these are represented in percentage. So see here, oceans में कितना percentage of water है? 97.3. Ice caps 2%. Groundwater 0.68%. Fresh water 0.009%. Inland seas and salt lakes 0.009%. Right? Atmosphere 0.0019% and rivers 0.0001%. ठीक है. All of you must be having your books with you. Keep your books and you can see the distribution there also. कि एक experiment किया गया कि take 2 liters of water in a bucket और उस 2 liters of water में से you have separated 12 spoons of water. ठीक है. वो 12 spoons of water आपने अलग कर लिया, उसमें से 9 spoons क्या है? This is वहाँ पे जो ice caps हैं उसके फॉर्म में, जो बाकी का रिमेनिंग है वो ओशियन वाटर है. ओशियन वाटर कैसा वाटर होता है? इट इज़ सलाइन वाटर. ठीक है, सलाइन वाटर होता है ना ओशियन वाटर. तो सलाइन का मतलब क्या है कि उसमें इट हैज़ डिज़ोल्व सॉल्ट्स इन इट, उसके अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में हैं. दैट इज़ दैट वी कॉल इट सैलिनिटी ऑफ वाटर. ओशियन वाटर, सी वाटर, वो सभी कैसे वाटर है? दे आर सलाइन वाटर. राइट, क्योंकि उसमें सॉल्ट है, नमकीन पानी है वो. तो वो हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और दूसरे जो हमारे हाउस होल्ड कोर्स हैं लाइक कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, उसमें यूज़ नहीं हो सकता. देन another major portion, that is the 2% of water is on ice caps. ice cap मतलब polar ice caps, both the poles, north pole, south pole, वहाँ पर ये आइस के फॉर्म में जमे हुए हैं. दे आर फ्रोजन देयर. तो वो भी हमारे लिए रेडिली अवेलेबल नहीं है. जब वो मेल्ट होकर आएंगे वाटर रिवर के फॉर्म में, देन ओनली इट विल गेट अवेलेबल टू अस, अदरवाइज दे आर नॉट रेडिली अवेलेबल. ठीक है. ग्राउंड वाटर जो कि अर्थ के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो है केवल 0.68%. फ्रेश वाटर जो कि हम यूज़ कर पाते हैं वो कितना है? ओनली 0.009%. एंड रिवर्स में जो वाटर है वो भी है 0.001%. ठीक है. एटमॉस्फेयर में मतलब जो वाटर वेपर है वो, एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी होती है ना, मॉइस्चर होता है, तो वो कितना है? 0.0019%. एंड इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स. इनलैंड सीज मतलब जो कि देश के बाहर नहीं है, अंदर ही हैं. ऐसे भी कुछ सलाइन लेक्स हैं जहाँ पर सॉल्टी वाटर है. उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? 0.009%. सो वी वर टॉकिंग कि अगर हम 2 लीटर पानी लेते हैं उसमें से हमने 12 स्पून्स बस अलग कर लिया, द रिमेनिंग वाटर इज सलाइन वाटर. ठीक है. उस 12 स्पून्स में से 9 स्पून्स जो है वो कहाँ चले गए? वो आइस कैप्स में चले गए. ठीक है. और उसमें से जो केवल 1/4 स्पून या हाफ स्पून वाटर इज़ ओनली अवेलेबल टू अस एज फ्रेश वाटर, एज ड्रिंकिंग वाटर और एज पोटेबल वाटर, जिसको कि हम पी सकते हैं और हम उसको हाउस होल्ड कोर्स में यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज द होल वाटर इज़, सम ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर जो है वो हम अवेलेबल होता है हमें बिकॉज द प्लांट्स टेक दैट वाटर फ्रॉम थ्रू देयर रूट्स. और इसके अलावा भी जैसे बोरिंग करवाते हैं या हम वेल्स डग करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं. बट जो रिवर्स और वाटरफॉल्स और जो स्प्रिंग्स हैं, जो फ्रेश वाटर की स्प्रिंग्स हैं, उसमें केवल कितना % वाटर है? 1/4 स्पून या हाफ स्पून के अलावा. तो यू कैन इमेजिन कि 2 लीटर पानी में से केवल आपको 1/4 स्पून ऑफ वाटर या हाफ स्पून ऑफ वाटर इज अवेलेबल ओनली फॉर योर डेली यूज़. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द वाटर इट इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल टू अस. और जो मेजर पोर्शन है वो तो अनयूज़फुल है, या हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं जिससे कि उसकी सैलिनिटी को ख़त्म किया जा सके. बट
स्टिल दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और कुछ चीज़ें हैं ऐसे जिसमें डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं जो कि लगाकर पानी को डिसैलाइन किया जा रहा है, उसका नमक जो है वो हटाया जा रहा है, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस और अभी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज some of the things that are given in your book, like what is salinity? Salinity is the amount of salt which is dissolved in amount of salt in grams which is dissolved in 1000 grams of water. 1000 grams of water में कितना ग्राम salt dissolved है, it determines the salinity of the water or a particular ocean or sea. ठीक है, तो एन एवरेज सेलिनिटी कितनी होती है ओशन की? इट इज़ 35 ग्राम्स। दैट मीन्स 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। दिस इज अ नॉर्मल सेलिनिटी ऑफ ओशंस। एक एवरेज सेलिनिटी, अगर पूरे विश्व के जितने भी ओशंस है, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, पर एक एवरेज निकालें तो इट कम्स टू 35 ग्राम्स। बट द डेड सी हैज़ द हाइएस्ट सेलिनिटी। डेड सी जो है उसकी सेलिनिटी सबसे ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई it is such a sea on which a person can float on water. ठीक है, why there's it is a general knowledge question कि क्यों डेड सी के पानी के ऊपर लोग फ्लोट कर पाते हैं? क्यों फ्लोट कर पाते हैं? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ much amount of salt makes the water very dense and therefore a person can easily float on water. ठीक है, इसलिए इसको द रीज़न इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मच सॉल्ट इन इट, राइट? सो एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, जस्ट रीड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्लियर? सो नाउ वी कम टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, और जो हम ओशंस देखते हैं, सीज देखते हैं, उसमें किस तरह से वाटर सर्कुलेट होता है, कैसे मूवमेंट होता है वाटर का, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। दैट इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक्स नेम इज ओशन सर्कुलेशन, हाउ द वाटर सर्कुलेट्स इन ओशंस और सीज। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दैट हैपन्स इन ocean water, and these are waves, tides and currents, right? So in this chapter we are going to take only the waves. Tides and currents we'll take in the next video. So we are coming to waves. What are waves? I knew that every one of you must have seen the waves. सबने waves देखी होंगी, लहरें जो समुद्र में आती हैं, if not in real life तो in real life और in television, और कभी ना कभी आपने समुद्र में लहरें उठती हुई सबने देखी हैं, है ना? So I am taking it for granted that all of you have seen the waves. तो ये waves क्या होती है? These are the upward and downward, alternate upward and downward movement of water on the surface of ocean. ठीक है, और ये किसकी वजह से फॉर्म होती है? इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड। विंड जो चल रही है, हवा जो चल रही है, उसकी वजह से जो सरफेस वाटर है इट राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, कभी उठता है कभी गिरता है, और उसकी वजह से ये जो मूवमेंट होता है ओशन वाटर में या सी वाटर में, दिस इज कॉल्ड वेव। ठीक है, आई होप कि आपको डेफिनेशन बहुत ईजी है, बहुत क्लियर हो गई होगी। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन व्हाट इज वेव। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, इट इज कॉल्ड वेव। ठीक है, ऑल्टरनेटली मतलब एक बार उठेगा और एक बार गिरेगा। ऐसे नहीं कि उठ रहा है तो उठता ही जा रहा है, उठता ही जा रहा है, फिर गिर रहा है तो गिरता ही जा रहा है। नो, इट राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, लहर कहते हैं। और वो कब आती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड बेसिकली। समटाइम्स दीज वेव्स आर वेरी वेरी हाई, और उसका जो रीज़न होता है, इट मे बी एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन वाटर, और बिकॉज ऑफ बर्स्टिंग ऑफ अ वॉल्केनो अंडर द वाटर, उसकी वजह से बहुत हाई वेव्स आती हैं समुद्र में, उनको कहते हैं सुनामी। ठीक है, व्हाट इज सुनामी? सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, इट इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स मतलब, हार्बर किसको कहते हैं? हिंदी में हार्बर मीन्स बंदरगाह, वो जगह जहाँ पर आकर शिप्स रुकते हैं। ठीक है, शिप्स आते जाते हैं जहाँ पर सामान लोड अनलोड होता है, उसको क्या कहते हैं? हार्बर। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुनामी इज हार्बर वेव्स।
और ये इसलिए रखा गया बिकॉज दीज आर सच हाई वेव्स विच डिस्ट्रॉय द हार्बर, जो कि हार्बर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ह्यूज वेव्स होती हैं। इट कैन बी द हाईएस्ट वेव दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इज 150 मीटर हाई। यू कैन इमेजिन द हाइट ऑफ दिस वेव कि 150 मीटर ऊंची सुनामी वेव रिकॉर्ड की गई है। एंड द स्पीड ऑफ द विंड इज ऑल्सो वेरी हाई, 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये वेव्स आती हैं। और इनका रीज़न मैंने क्या बताया आपको, कभी अर्थक्वेक आता है ज़मीन के ओशन वाटर के नीचे, जो ओशन वाटर के नीचे जो ओशन बेड है, जो ओशन के नीचे भी तो ज़मीन है ना, वहाँ पर जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में कुछ मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक आता है, या फिर ओशन बेड के नीचे कोई वॉल्केनो है जिसका इरप्शन होता है, उसकी वजह से ह्यूज वेव्स फॉर्म होती हैं जिनको सुनामी कहते हैं। एंड दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ये पूरा डिस्ट्रक्शन अपने साथ लेकर आती हैं क्योंकि देयर हाइट इज़ वेरी they are very huge, they have a lot of height, and also they are very the speed of that, the velocity is also very high. It can be 700 to 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसी ही एक सुनामी आई थी हमारी कंट्री में इन 2004 जिसका एपिसेंटर था इंडोनेशिया में, सुमात्रा पे, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सुमात्रा में ये एपिसेंटर था इसका। और ये वेव आई थी सुनामी आई थी 2004 में, विच brought with it a lot of destruction। बहुत सारे कोस्टल एरियाज में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था इंक्लूडिंग इंडिया। और यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा जो इंदिरा पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था हमारी कंट्री का, वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट सुनामी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इन द कोस्टल एरियाज। सो इसके बारे में पूरा केस स्टडी दिया है। लॉट ऑफ पीपल डाइड क्योंकि सुनामी एक ऐसी थी, मतलब ये सुनामी जब आई थी तो इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं दी गई थी, बिकॉज अर्थक्वेक्स जो हैं उनका प्रेडिक्शन अभी बहुत साइंटिफिकली बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाए साइंटिस्ट, जो मतलब वो पहले से बहुत ज़्यादा पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो अगर इसकी प्रेडिक्शन हो जाती, पहले से पता होता कि हाँ इस तरह की सुनामी आने वाली है, तो बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था, बट इट डिडंट हैपन। और बिकॉज ऑफ दिस सुनामी a lot of destruction took place in the coastal areas of India as well as Indonesia, Japan, जो भी आसपास के coastal areas थे, islands थे, वहाँ पर बहुत massive destruction हुआ था, बहुत सारे लोग जान से मारे गए थे। ठीक है, तो इसको आपको जो आपके बुक में जो केस स्टडी दिया उसको रीड करना, इट्स वेरी इजी। So here we have come to the end of this video. In the next video we'll discuss about our two topics, tides and currents. So be ready for the next video. Okay, bye bye.